Good evening and welcome. You're watching Election Radar. We are broadcasting and getting you all the latest details from battleground Lakhimpur. Yes, along with Lucknow, Lakhimpur Kheri is also going to vote on the 23rd of February. Lakhimpur has been in the news now for that infamous Jeep incident where MOS home Ajay Mishra Teni's Jeep mowed down farmers and then it was subsequently burnt. But what has been simmering since then has been the politics around that incident. Will that weigh on the mind of the voters on the 23rd of February in Lakhimpur Kheri? It's the biggest district, by the way, in terms of area. Has 8 assembly constituencies. Let's go to them one by one right here. We'll give you a constituency profile very quickly. So what has happened is, as we told you, there are 8 assembly segments. Put them on screen. In 2012, many of these assembly segments went to the Bahujan Samaj Party and to the Samajwadi Party. In 2017, 8 of these assembly segments all went to the Bharatiya Janata Party, which means that there was no division, complete sweep by the Bharatiya Janata Party. This time around, the BJP hopes that things are going to change. Things are going to, in fact, remain the same. The opposition hopes that things are going to change in their favor. Will that happen? Will this incident, Jeep incident, weigh a lot on the mind of the people there? And what are the other issues for the people of Lakhimpur Kheri? We were there the whole day. We went to Nighasan, as we told you, crazy distances in Lakhimpur Kheri. We traveled extensively across the district, and we've got this report for you. So Lakhimpur is going to go to polls on the 23rd of February, but when you think of Lakhimpur, unfortunately it has developed over the past few months an identity which is not something worth celebrating. And it has a lot to do with this place called Tekunia, where I am standing right now. The very same road where the now infamous Jeep of Ajay Mishra Teni took this road, killed many number of farmers who were gathered right here on this road, and then that Thar Jeep was burnt exactly at that place, right there. This place will now define how the voters of Lakhimpur are going to vote. 8 Vidhan Sabha constituencies. And it seems that the memory of the 3rd of October 2021 has not faded. How much will it impact the polling? Let's find out. ये जो जगह है, इसकी वजह से तमाम लोगों ने यहाँ पर राजनीति की, और उससे पहले तो क्या दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें इतने सारे लोगों की मौत हुई, लेकिन उसमें राजनीति भी जम के हुई। आपको क्या लगता है कि क्या ये लखीमपुर में राजनीति प्रभावित कर सकता है ये प्रकरण? लखीमपुर में नहीं सर, ये पूरे समझो देश के अंदर प्रभावित कर दिया ये कांड। इस कांड से सारे किसानों में बहुत बड़ा रोष है। और व्यक्तिगत सरदार जो हैं वो तो पहले बेचारे बहुत भाजपा को साथ देते, इस बार एक तरफा सब चले गए समाजवादी। कितना है आबादी, कितनी है उनकी? इनकी यहाँ 22,000 आबादी है। और जितने मुस्लिम तो सपा का ही है, वो तो हमेशा वो कहीं देते नहीं है। बाकी यादव बिरादरी है, और मौर्या जो यहाँ खड़े हैं वो पूर्व मंत्री हैं, वो पूर्व अध्यक्ष हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं RS कुशवाहा जी। तो इसलिए उनका समीकरण बहुत अच्छा बन गया इस बार। बहुत अच्छी फाइट करेंगे, बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे वो। आपके हिसाब से क्या है यहाँ पर मुद्दा, क्या होगा, आपको क्या लगता है? मुद्दा सर यहाँ पे किसानों का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरी चीज ये है कि हमारा ये तराई क्षेत्र है, सबसे ज्यादा यहाँ बाढ़ की समस्या बनी रहती है। कोई भी नेता यहाँ पे बिल्कुल कतई ध्यान नहीं देता है, और पशुओं की वजह से इस बार इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं कि लोगों की फसल जो है, सब पशुएं जो है। ये सवाल मैंने बीजेपी वालों से पूछा, उनका ये कहना है कि भाई हमारे पशु थोड़ी हैं जी, लोग ही तो छोड़ रहे हैं इसको, तो फिर कुछ एक कार्रवाई की जाएगी। कुछ आगे उन्होंने बताया है कि हम रणनीति बनाएंगे। जानवर जानबूझ के छोड़े गए इसलिए कि जब किसान की फसल चली जाएगी और जो किसान परेशान हो जाएगा, जमीन सस्ते मध्य बेच के और चला जाए। ये बड़े उद्योगपतियों के साथ ये जमीन हड़पने का एक साजिश है। चुनावी मुद्दा
ना केवल यहाँ पर जो प्रकरण हुआ वो, पर किसानों के कई सारे और मुद्दे भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो एक गाय सांड का है, हाँ। इससे बड़ा कोई मुद्दे नहीं है। इससे पहले जब ये कांड नहीं हुआ था, उससे पहले इतनी समाजवादी की लहर नहीं थी। जब से ये कांड हो गया, पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को एक रोष पैदा हो गया कि बताओ, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई जानबूझ के। ऐसा कहीं होता है? जलियांवाला बाग बना दिया गया, इसलिए लोग यहाँ पहुंच ना रहे। पूरे प्रदेश के एकदम हवा बदल गई। आप युवा हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है? तो यहाँ का बहुत मेन मुद्दा वही है किसानों का, और खासकर जो है गन्ना पेमेंट भी टाइम से नहीं होता है, चाहे यहाँ पर लिया फैक्ट्री हो या दलनाया फैक्ट्री हो। और बाकी जो है ये सांड और गायों का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी जो किसान इससे बहुत नाराज़ हैं, जो कांड हुआ था यहाँ लखीम बनवीरपुर के जो आशीष मिश्रा मोनू भैया द्वारा, तो उससे किसान बहुत परेशान है। और यहाँ समाजवादी की एक बहुत लहर है, बहुत अच्छी। इस कांड से सर पूरे 8 सीटें जो सपा के खाते में चली गई। हम इस वक्त लखीमपुर में हैं और ये यहाँ का सदर चौराहा है, जिसको लेबर चौक भी कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर कुछ महीनों पहले टेनी पुत्र का जो कांड था वो सुर्खियों में छाया था। क्या वो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्रों में, जिसमें 2017 में पूरी तरीके से बीजेपी की एक लहर आई थी। उससे पहले 2012 में बसपा और सपा भी थे, लेकिन 2017 में पूरी तरीके से बीजेपी हो गया। लखीमपुर के दिल में क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक लेबर चौराहा भी है, यहाँ लोग एकत्रित होते हैं, लखीमपुर की अलग अलग जगहों से आते हैं रोजगार की तलाश में। क्या आपके लिए पिछले 5 साल में या कुछ समय में क्या तकलीफ आपको हुई है? हमको कुछ नहीं मिला है, ना तो हमको आवास मिली है, ना राशन कार्ड बना है, ना कुछ। हम मंजूरी करते हैं और मंजूरी से जो है खर्चा वही चलता है मेरा। तो यहाँ सुबह कितने बजे आ जाते हैं? यहाँ आ जाते हैं 8:30 बजे, 8:30 बजे आते हैं हम। और उसके बाद फिर इंतजार करते हैं? इंतजार करते हैं 11 साढ़े 11 बजे तक का, फिर घर को चले जाते हैं। कभी कभी मिल जाता है काम। और कितना मिलता है रोज? 300 मिलता है। 300 रुपया अगर कोई काम में ले लिया तो? हाँ, जब काम ले लिया तब तो 300 मिलेगा। वैसे काम मिलते ना तो नहीं मिलते काम। अच्छा, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो ये बताइए, ये तो लेबर और कोई है जो बात करेगा, जो बताएगा कि क्या दिक्कत है? नमस्कार, बताइए क्या दिक्कत है आपकी? सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आए थे हम काम कराने के लिए, लेबर ले जाने के लिए। अच्छा, आप लेबर ले जाने के लिए हैं? हाँ, काम करा रहे हैं। तो जैसे कि आप सुन रहे हैं, इनका ये कहना है कि कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, काफी समस्याएं हैं काम को लेकर के। जी सर। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आपने तो ये देखा ही होगा लखीमपुर किस कारण से सुर्खियों में आया था। किसानों के ऊपर जीप चढ़ गई थी। आपको लगता है कि वो लोगों के मन में है ये बात, ये जो हुआ? है सबके मन में है। आप कहाँ से? लखीमपुर से? लखीमपुर से हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं लोगों के दिमाग में वो चीज है अभी? है। वो जाएगी थोड़ी ना, इतनी जल्दी थोड़ी ना जाएगी। टेनी महाराज के भैया ने जो है ये कांड किया था, वही। टेनी महाराज बुला रहे होंगे? महाराज तो वही है वो जो। महाराज इसलिए बोल रहे हैं कि उनकी दबंगई है, और नहीं महाराज बोलने, इनकी मजबूरी है महाराज बोलना। अब क्या किया जाए? नहीं, जैसे दो अब हम लोग केवल यही अपने वोट का चोट कर दे सकते हैं इनको, और वही वोट का चोट इनको 10 मार्च को दिखाई देगा। अच्छा, वोट की चोट भारतीय जनता पार्टी को टेनी की वजह से दिखाई देगी यहाँ पर लखीमपुर में। इनको स्वाभाविक है, देखना पड़ेगा। और सरकार भी अपने आप से कहीं ना कहीं जो ये सोच रही है कि हाँ हम ये चीज़ें किए हैं, उसको आज अपना आने वाला 10 मार्च को भी दिखाई दे देगा कि हाँ को कितना रोजगार दिए हैं, कितना क्या कुछ किए हैं। जो सरकार है यहाँ की, उसका तो ये कहना है कि हमने रोजगार भी दिया, हमने कानून व्यवस्था भी दुरुस्त कर दी। कोई रोजगार नहीं हुआ यहाँ कोई रोजगार नहीं हुआ है। रोजगार 11 बज गया, अगर रोजगार होता तो हम लोग यहाँ खड़े होते चौराहे पे। अगर रोजगार होता, लगा के आते हैं 25 इधर का 25 उधर का किराया लगता है, और यहाँ से जाएं तो वो खाली हो, मतलब किराया हमारा चला जाता है। आज सिलेंडर यहीं पर रोज आपको 200 लेबर आपको यहीं खड़ा मिलेगा। रोजगार की बहुत समस्या है यहाँ। 50% लेबर पर डे जो है वापस जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या ये 2012 से 2017 में भी यही स्थिति थी या ये अभी हुई है? उस दौरान में ये स्थितियां नहीं थी, उतनी स्थितियां नहीं थी। उस दौरान में इतने प्रोजेक्ट चल रहे थे, छोटे छोटे बड़े बड़े जो कुछ भी चल रहे थे, उसमें एक कुछ न कुछ लोगों को रोजगार मिलता था। तब 300 की दिहाड़ी थी, वही दिहाड़ी आज भी है। लेकिन आज ऐसी मजबूरी हो जाती है कि लोगों को 250 270 में भी करना पड़ जाता है। अच्छा, आप लोग सब किसान पृष्ठभूमि से हैं? मतलब गांव में खेती वगैरह होती है? नहीं, हमारे तो खेती नहीं है। अच्छा, आपकी नहीं है, किसकी है?
हैं? आपकी है? हाँ, है। फिर भी आप मजदूरी करने आए? हाँ भैया कर- ऐसा क्यों? अब नहीं कर पाए तो क्या करें भैया। सर खेती में इतनी लागत लगती है कि उसमें पूरा नहीं कर सकते हैं, उससे न अपने जो है खाने का गैया भैंसी जो है छोड़े पड़े हुए हाँ, हैं, ये सांड वाला मुद्दा तो हमने हर जगह सुना। हाँ। इसमें जो है गैया भैंसी छोड़े हुए हैं और जो लागत लगती है खेती में वो खेती से निकल नहीं पा रहा है। अगर जो थोड़ा बहुत फसल होती भी है वो गाय और साल चढ़ जाते हैं। अच्छा ये बताइए, बीजेपी तो बड़ी उम्मीद से है कि इस बार ये जो एक हवा बनाई जा रही है बेरोजगारी की, तकलीफ की, ऐसा कुछ नहीं है, जनता उन्हीं के साथ है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर रियलिटी है जो चीज़ है बेरोजगारी का, ये इसमें हवा नहीं बनाई जा रही है, ये चीज़ें रियलिटी है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर। 2-3 अगर मैं प्रमुख चीजें आप लोगों से पूछूं तो एक तो हो गया बेरोजगारी, एक हो गया कि महंगाई। क्या टेनी एक मुद्दा है आप लोगों के लिए? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि कैसे भूल जाएं, कौन आप भाई साहब बोल रहे थे कि कैसे भूल जाएं, वो चीज नहीं दिमाग से उतारी जा सकती। आप सब ये चीज मानते हैं? जी सर बिल्कुल इसके लिए मानते हैं, और इसके लिए इतने भी नहीं वो होना चाहिए दबंगई कि अपने अंदर के आप किसी को देख ना सको। आप में से कौन था इसने 2017 में भाजपा का समर्थन किया था? अच्छा आपने किया था? हाँ बताइए। मैं प्रशांत श्रीवास्तव। हाँ। मैं एक व्यापारी हूँ। हाँ। मैंने देखिए अब इससे पहले हमारे कोई सुविधा नहीं मिलती थी। जब से भाजपा आई है बहुत घर घर विकास मिल रहा है। हाँ। और गैस सिलेंडर मिल रहा है, खाने को भी मिल रहा है, उसके बाद भी राशन भी मिल रहा है। सिलेंडर वाली बात पे इनका ये कहना है कि भरवाएगा कौन महाराज? हाँ वो भी मैं बताता हूँ। देखिए गरीबों को जो राशन मिल रहा है उसकी भरपाई हम ही लोग से करनी है। हर सरकार कोई ना कोई योजना लाती है तो थोड़ा महंगाई होती है, क्योंकि भारत का पेट्रोलियम भारत का नहीं है, वो विदेश ईरान से आता है। जब वहाँ से पूरे विश्व से सस्ता होगा। पेट्रोलियम इससे पहले नहीं आता था, इससे पहले भी तो आता था। पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब 400 का सिलेंडर था। पेट्रोल जो है 66 रुपए था, आज 100 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है। डीजल जो है कंप्लीट। पहले मेरी बात समझ लीजिए, सब्सिडी खत्म हो गई, सब्सिडी खत्म हो गई। मैं एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं भाजपा में काम। नहीं ठीक है, आपको अपना जो आपका मन है, जो मत है, वो जाहिर करने का पूरा अधिकार है। मैं एक LLB का छात्र हूँ और मैंने YDPC से राजनीतिक विज्ञान से करा है। मैंने जितनी राजनीति समझी है, राजनीति का मकसद ये होता है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या करती है? परिवार के द्वारा, परिवार द्वारा शासन करती है। खाली परिवार के लिए नहीं करना चाहिए, जनता के लिए करना चाहिए, भले वो कोई भी जाति धर्म का हो, सबको लेकर चलना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी सब हाले नारे तो उनको कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन विकास के लिए देख लीजिए हिंदू से ज्यादा मुसलमानों को योजनाएं दी है। लोग कह रहे हैं नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, सब्सिडी खत्म हो गई, और उसके ऊपर कुछ लोगों का ये मानना है कि रही बात टेनी जी की दबंगई, जैसे इन्होंने बोला। मैं बताता हूँ, देखिए असल में जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, कोई अगर हम पे हमला करेगा तो हम लोग बचाव करने का संविधान हमें अधिकार। तो जीप थोड़ी चढ़ा देंगे? ये जो हुआ ये गलत हुआ, ये बहुत ही गलत हुआ। जो जीप चढ़ी है ये बहुत ही गलत हुआ। वो एक दुर्घटना, वो मान दुर्घटना नहीं थी, दुर्घटना नहीं थी, वो तो जांच में ये निकला है कि जानबूझ के चढ़ाई। उसमें जो है वो दोषी करार पाए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई चलेगा, अदालत में चल रहा है। हम नहीं कह सकते, क्योंकि माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो उस पर सुनवाई कर रही है, हम लोग का कुछ कहना उस पर गलत होगा। आपको लगता है कि अखिलेश यादव अगर सरकार बनाते हैं तो वो बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था तीनों दुरुस्त कर सकते हैं? अखिलेश यादव पहले भी करे थे। जो 100 नंबर किसने लाया है? अखिलेश यादव ने लाया है। और जो लाइट का जो चल रही है इसमें 24 घंटे लाइट हम लोगों को मिल रही है, ये अखिलेश यादव की सफाई में मिल रही है, सफाई में मिल रही है और इटावा में मिल रही है, इसके अलावा कहीं नहीं मिल रही है। ये भाई जब से मोदी जी के यहाँ पर आए हैं, लखीमपुर में जितना कार्य हुआ है सब अखिलेश यादव ने कराया है, बाकी भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं कराया। जबकि पिछली बार तो 8 में से 8 पाए। वो तो एक केवल मोदी की वजह से। यहाँ अगर बीजेपी तो आपकी मोदी आपकी नहीं, एक सुनिए मेरी बात। पिछली बार आप कह रहे हैं मोदी जी की वजह से 8 में से 8 हो गया, तो अभी भी तो मोदी जी हैं। तो मोदी जी आए भी नहीं है यहाँ पर, मोदी जी आए भी नहीं है और ना योगी जी आए, तब भी यहाँ की 700 सीटें आराम से निकली और श्रीनगर के लिए योगी ने प्रचार करा, वो आराम से निकल 8 में से 3 पा जाए बहुत बड़ी बात है। बीजेपी ये जो गल्ला मिल रहा है, वो कह रहे हैं बहुत अच्छी सरकार चली। राशन मिल रहा है केवल मार्च तक है, इलेक्शन तक है ये, इसके बाद ये राशन नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये जो फ्री राशन, फ्री किसको लगता है फ्री राशन बस चुनाव तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा? हमको लगता है ये तो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं योगी जी लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। फ्री राशन लॉलीपॉप जी लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। केवल मार्च तक है। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, आप
ये तो मानेंगे कि यहाँ सुन करके कि एक रोष है, कुछ नाराजगियां हैं। वो आपका कल अगर रोज शो आप देख लेते तो आपको पता चल जाता। यहाँ की लखीमपुर की 90% वहाँ भीड़ की कमी नहीं थी, दीवार पे आदमी तोड़ बैठा था, पेड़ पे बैठा हुआ था। एक आप रैली चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसकी रैली में आई हुई भीड़ जनता का जो रोष है या जनता की जो नब्ज है उसको पकड़ सकता है। यहाँ पर लेबर चौक जो है सदर इलाके में लखीमपुर में, उसमें आप देख सकते हैं अलग अलग गांव से ये वो लोग हैं जो कि रोज रोजगार की तलाश में आते हैं और उनके दिल में क्या है वो हमने आपको सुना दिया। तो लखीमपुर में एक गांव ऐसा भी जिसने ये तय किया है कि इस चुनाव में हम वोट ही नहीं डालेंगे। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं गांव वालों से। इस गांव का नाम है चितिहा। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका शुभ नाम और क्यों वोट नहीं डालेंगे। सत्यनारायण यादव। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी अहम समस्या है कि हमारे गांव की ज़मीन लगभग 80% लोगों की रेलवे लाइन के उस पार है और लगभग 1-1.5 साल हुआ जा रहा है। तो वो रेलवे लाइन का क्रॉसिंग का रास्ता जो है हमारे गांव से लगभग 4-5 गांव का रास्ता वो है लाइन के उधर जाने के लिए, वो रास्ता बंद कर दिया गया। पहले तो लाइन के खंभे गाड़े गए उसमें, फिर लोगों ने जब इतराज़ किया तो किसी तरह से वो खंभा हटा करके अपना आवागमन होता रहा। डल्ला ट्रैक्टर ट्राली बंद हो गया, आना जाना पैदल या साइकिल से आना जाना बराबर चलता रहा। उसके बाद वो रेलवे विभाग वालों ने जेसीबी लाकर लगभग 10 फीट गहरी 8 फीट चौड़ी नाली खोद दी, इसमें रास्ता खोद दिया गया जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप है। और हमारे गांव की खेती जो उधर पड़ती है, तो आप कैसे जाते हैं वहाँ? उधर लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर बेलायन से रास्ता है। और पहले कितना किलोमीटर था यहाँ से? पहले यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता था, अब 5 किलोमीटर हो गया। 5। और इधर तिकुनिया से जाते हैं तो कम से कम 12 किलोमीटर रास्ता है। हमारे गांव के सभी लोगों ने मिलकर एक डीएम को और एसडीएम को, डीआरएम को कई बार शिकायत पत्र पहुंचाए गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। चुनावी मौसम में ये कह देना कि वोट ही नहीं देंगे, ये क्यों? ये इसीलिए जब हमारा रोड नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। जब रोड नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने वोटर हैं इस गांव में? लगभग 700 वोटर है। 700 वोट नहीं पड़ेंगे यहाँ से अगर वो सड़क नहीं खुलती। सड़क नहीं खुलती। क्या चीज? बिल्कुल नहीं पड़ी है। हाँ, जो हमारे लोग रास्ता ही नहीं तो वाट डायरेक्ट फायदा का है, कोई हमारे लोगों ने सुनता ही नहीं। जब से रेलवे लाइन अंग्रेजों के जमाने में बिछी रहा है तब से रास्ता है। लगभग 135 साल हो गया है रास्ता चलते चलते। हम लोग अब मान के चलो किसी नेता से, सांसद या विधायक से कहा जाता है तो वो लोग यही कहते हैं यहाँ रास्ता ही नहीं था, आप लोगों ने बना लिया होगा। 1985 में पुल बना रहा है, तब का खड़ंजा लगा है बाकायदा डगरा के ऊपर, वो सब खोद करके हटवा दिया गया। हमारे लोगों ने निकासी भी बंद है। चलिए, तो अब ये देखना होगा कि आपने ये जो अल्टीमेटम दिया है कि 23 फरवरी को आप वोट ही नहीं डालेंगे, तो इस पर अब क्या, अब तो बहुत कम समय रह गया है। तो समय रह गया कम, हम लोग नहीं वोट देंगे, बस सीधी बात है, वोट नहीं डालेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात हम चाहते हैं कि पहुंच जाए जहां पहुंचनी चाहिए और उसके बाद फिर आप लोगों को जो तकलीफ है वो ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।